Yesterday, we considered what the Lord had to say about the priesthood. और हमने पिछले दिन में कल हमने ये इस बात को सीखा था कि परमेश्वर जो है, जो याजकीय सेवा कार्य है, उसके प्रति वो क्या कहते हैं, उनका प्रत्युत्तर क्या होता है, हम उसको देखे थे, सीखे थे. And we considered what were the pitfalls, or what were the, what should I say, the negatives, or where they were lacking, where the priesthood were lacking, which the Lord was pointing out. We saw that yesterday. और हमने इस बात को कल देखा था कि जो याजक लोग हैं, उनके जीवन में कहाँ पर कमी थी, कौन से एरिया में कमी थी, उस बात को कल हमने इस बात को सीखा था. All right, so today we will continue, and I almost started off yesterday uh, on the positives, or what is the positive side of the priest, and what the Lord was talking about, their strength, or what they were doing very well. और हमने कल इस बात को भी देखा था कि उनका जो वो कर रहे थे, उसके प्रति परमेश्वर जो है, उनके सकारात्मक कार्यों को जो वो लोग कर रहे थे, उसके बारे में परमेश्वर उनको बताते हैं और उसके प्रति बोलते हैं, All right. प्रत्युत्तर देते हैं. उसको हमने कल सीखा था. Right. So I didn't start on that, but I told you about the failures of the priesthood. Today we will talk about the successful ministry of the priesthood. और कल हमने जो है उनका जो असफलता, उनकी सेवा कार्य में असफलताओं के ऊपर हमने चर्चा किया था. और आज हम जो है उनकी सफलता, उनके सेवा कार्य के ऊपर जो सफलता उन्होंने प्राप्त की है, उसको हम लोग आज अध्ययन करेंगे. All right. Now I'm going to use this. I'm sorry. 1 minute. All right. I'm going to use an illustration to help us understand the successful ministry of the priests. और इस उदाहरण को जो है मैं फिर से इसका प्रयोग करना चाहता हूं कि उनके जो याजकीय लोग थे, उनके याजकीय सेवा कार्य में जो सफलता प्राप्त थी, उस उदाहरण को आज हम इसको समझने के लिए प्रयोग करेंगे. All right. Now, the illustration that I want to use, which I said yesterday, is the illustration of a tree. और जो हमने कल कल के दिन हमने जो उदाहरण को देखा था, वो उदाहरण क्या था? वो उदाहरण एक पेड़ का उदाहरण जो सर ने हमको दिया था. All right. When we talk about a tree, I want to ask you, what all do we think about a tree? और जब हम एक पेड़ के बारे में सोचते हैं, तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, हम पेड़ के बारे में क्या कुछ सोचते हैं? Yeah, anyone can answer. You can unmute and answer, and you Fruit, tell. fruit. We can think about fruits, Yeah, root and fruits. leaves, Very good. branches. Yeah, branches, leaves. Very good. Anything एक else? पेड़ के बारे में हम लोग जो है उसकी जड़ों के बारे में, उसके फलों के बारे में, उसकी डालियों के बारे में, उसकी पत्तों के बारे में हम लोग सोचते हैं एक पेड़ को जब देखते हैं. All right. I think हरियाली. ग्रीनरीज, यस, Haryali. और इट Okay. गिव्स द सैड All right. छाया. Medicine. All right. So I think you covered almost everything between both of you. वायु भी देता है. अच्छा What is वायु. correct. हवा. Okay. Oxygen, which is right. Greenery we can see. हाँ, Which हरियाली. Haryali. Okay. Yeah. I think all the answers are correct. Now we will look at a tree right now, and from that we will understand what are the how can we compare this with the successful ministry of the priest or the priesthood. आप लोगों ने जो भी उत्तर दिए वो सब एकदम से सही उत्तर और जवाब थे. और आज मैं अभी एक हम पेड़ को देखेंगे. उस पेड़ से हम इस बात को सीखेंगे कि उस पेड़ के जरिए से कैसे जो याजकीय सेवा कार्य था, उन लोगों ने उसमें सफलता को प्राप्त किया. इस पेड़ के जरिए से हम लोग उसको सीखेंगे. So when we look at the tree, as you all said, it starts from the roots. The root comes first.
और जैसे कि आप सभी लोगों ने उत्तर दिया था, जब हम पेड़ के बारे में सोचते हैं सबसे पहले उसकी जड़ों पर हम लोग विचार करते हैं, And then comes the trunk, which is the main part of the tree. और उसके बारे में फिर उसके बाद जड़ों के बाद फिर हम सीधे उस पेड़ के तने में आते हैं, And then comes the branches, और फिर उसके बाद में फिर डालियां आती हैं, and then comes the fruit. और उसके बाद में फिर फल आते हैं. All right. So we will look at the roots, the trunk, the branches, and the fruit, and compare it to the success of what the priests were doing and what the Lord was telling them about that. और आज हम लोग जो है एक पेड़ की जड़ें, उसका तना, उसकी डालियां और उसके फलों पर हम लोग इन चार बातों के ऊपर हम उनसे तुलना करते हुए कि कैसे याजकीय सेवा कार्य में उन लोगों ने सफलता को प्राप्त किया, उससे तुलना करते हुए आज हम उससे सीखेंगे. All right. Let's turn to Malachi chapter 2 and let's read three verses 5, 6, and 7. चलिए हम लोग मलाकी की पुस्तक उसका 2 अध्याय को पढ़ेंगे और वचन 5, 6, 7 पढ़ेंगे. 5, 6, 7. मेरी जो वाचा उसके साथ बांधी थी वह जीवन और शांति की थी, और मैंने यह इसलिए उसको दिया कि वह भय मानता रहे, और उसने मेरा भय मान भी लिया और मेरे नाम से अत्यंत भय खाता था. उसको मेरी सच्ची व्यवस्था कंठस्थ थी और उसके मुंह से कुटिल बात ना निकलती ही थी. वह शांति और सिधाई से मेरे संग संग चलता था और बहुतों के अधर्म से लौटा ले आया था, क्योंकि याजक को चाहिए कि वह अपने होठों से ज्ञान की रक्षा करे और लोग उसके मुंह से व्यवस्था पूछे, क्योंकि वह सेनाओं के यहोवा का दूत है. Thank you. Now, from all the three verses 5, 6, and 7 of Malachi chapter 2, we understand very clearly that the Lord was pointing out that the priesthood was doing these things very correctly. और अभी हमने जो 5, 6, 7 वचन पढ़े हैं उनमें हम लोगों ने इस बात को देखा कि परमेश्वर उन बातों के ऊपर केंद्र करते हुए उन बातों के ऊपर इशारा करते हैं जो याजक लोग उनको सही तरीके से करते चले आ रहे थे. And I mentioned yesterday, when the Lord refers to the priesthood, we can take it that he is referring to the pastors, the leaders, the teachers, the preachers, and everyone in the church. He's referring to that, and that message is to all of us. Sir, could you please repeat, sir? Yeah, what I was saying is yesterday, when I was mentioning about what the Lord is telling the priesthood, we can take it that the Lord was speaking to the pastors, to the leaders, to the preachers, to the teachers, and those in the ministry who are taking a leadership role. The Lord was speaking to them, and we will continue to think about that even today. और जैसे कि हमने कल पिछले दिन में जो है हमने इस बात को सीखा था कि किस प्रकार से आखिर वो लोग जो वहां पर जो याजकीय सेवा कार्य को करते थे उन लोगों के द्वारा परमेश्वर उनसे, जैसे कि हमने उनसे तुलना किया था, एक प्रचारक का, एक शिक्षक का, एक पास्टर का, एक इवांजलिस्ट का, और जो कोई कलीसियाओं में नेतृत्व करते हैं, अगुवाई करते हैं, उनके बारे में हमने कल पिछले दिन सीखा था और आज भी हम उन्हीं पर विचार डालेंगे. All right. When we look at the tree, when we look at these four things, the roots, the trunk, the branches, and the fruit, and when we compare it to a successful ministry by the priest, we will remember this very clearly every time we are involved in any ministry. That is the reason this illustration is being shown. और जब हम लोग जो है उसकी जड़ों को, उसके तने को, उसके पत्तियों को, उसके फलों को जब हम देखते हैं तो वो जो है उसी बात को दिखाता है. एक पास्टर, इवांजलिस्ट या एक शिक्षक या पास्टर का ये जो सफलता पूर्वक और फलवंत सेवकाई के द्वारा हम लोग देख सकते हैं उसमें. So when we look at the truths, we will understand this one by one quickly. Let's look at the roots. When we look at the root, what it tells us that it represents a strong preaching and a teaching ministry in the church.
और जब हम एक सफलता की और जब सफलता का एक सेवकाई की सफलता के पर विचार करें तो वो उसकी सफलता उसकी जड़ों पर निर्भर रहती है। और जड़ें क्या दिखाती हैं? जड़ें एक बहुत ही मजबूत प्रचार और उस सेवकाई को दिखाता है। Now, a good preaching ministry or a good teaching ministry in the church is very, very important, and that is a covenant which God has given to the priesthood. और मेरे प्यारों, जो सेवकाई है वो सेवकाई को जो है परमेश्वर ने जो दिया है वो का है एक अच्छा प्रचार करना, या इसी प्रकार का जो भी परमेश्वर ने उनको दान दिया है उसके प्रति जो सेवकाई का कार्य उनको सौंपा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे प्यारों। All right, let's look at verse 4, and 5 we've already read, but let's look at verse 4 once again. Can we read Malachi 2 and verse 4? 5 हमने पहले से ही पढ़ चुका था, लेकिन चलिए हम वचन 4 को 2 अध्याय मलाकी के 2 अध्याय उसको 4 आयत को हम लोग पढ़ेंगे, चौथी आयत। तब तुम जानोगे कि मैंने तुमको यह आज्ञा इसलिए दिलाई कि लेवी के साथ मेरी वाचा बंधी रहे, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। Now, in both these verses, verses 4 and 5, you find the Lord mentioning that covenant with my Levites. That you find in verse 4, the covenant with my Levites, and my covenant with the Levites in verse 5. Yes? Can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. I can hear, but there was some disturbance. Co-host, I request you to please kindly take care of those things because I didn't get the sir what was he was telling. All right. Now, in verses 4 and 5, there are two phrases that are repeated. Now, verse 4 says, my covenant with the Levites. Verse 5 also says, the purpose of my covenant with the Levites. और हमने अभी इस वाक्य को पढ़ा जो 2 का 4 में हमने देखा था कि परमेश्वर उधर में कहते हैं कि वो वाचा जो मेरी लेवियों के साथ थी, और वचन 5 में हमने पढ़ा था कि वो वाचा उसका कारण जो लेवियों के साथ थी उसका उद्देश्य क्या है, उसको हमने अभी पढ़ा है। When a word or a phrase is repeated, we must understand the importance or the emphasis the Lord is laying when he repeats a word or a phrase. और हम इस बात को हम कभी भी जब भी हम पढ़ते हैं तो हम इस बात को स्मरण रखें कि जब कोई भी वाक्य या कोई भी उसमें शब्द जो है दोहराया गया बार-बार आया है तो हमको उसका महत्वपूर्णता को हम लोग को समझना है। When we pass on an instruction to someone to do something, what do? We pass that instruction, we say it once again. Sometimes we even ask them to repeat what I said because we want them to be very clear on what instruction has to be followed, isn't it? और जब हम कभी किसी भी भाई को या कोई भी व्यक्ति को कोई कार्य करने के लिए देते हैं तो उस कार्य को करने के लिए हम उसके कुछ निर्देशों को जो उनको पालन करना है उनको हम भली भांति कंठस्थ कराते हैं। यहाँ तक कि कई बार हम उन निर्देशों को दोहराने के लिए भी उनसे कहते हैं जिससे कि वो निर्देश जिसके अनुसार उसको वो कार्य करना है उसको अच्छे तरीके से याद हो जाए, जिसके अनुसार वो उस कार्य को करने पाए। क्या हम ऐसा नहीं करते? Yeah, this is what the Lord is doing to the Levites. He's preaching, he's telling the people, his children, he's saying that I have made the covenant with the Levites in verse 4, and again is saying that once again, you see, I have made a covenant with the Levites. और हम इस बात को देखते हैं, परमेश्वर इसी बात को कहते हैं कि उसी प्रकार से कि मैंने जो है लेवियों के साथ में उस वाचा को बांधा है। वचन 5 में फिर से उसी बात को दोहराते हुए परमेश्वर कहते हैं कि मैंने उन लेवियों से जो वाचा बांधी है उसका एक उद्देश्य है। All right. Now in Numbers chapter 25 verses 12 and 13. Numbers 25 verses 12 and 13. गिनती की पुस्तक उसका 25 का 12 और 13। 25 का 12 और 13। गिनती की पुस्तक 25 का 12 और 13। 25 का 12 और 13। इसलिए तू कह दे कि मैं उससे शांति की वाचा बांधता हूं और वह उसके लिए और उसके बाद उसके वंश के लिए सदा के याजक पद की वाचा होगी, क्योंकि उसे अपने परमेश्वर के लिए जलन उठी और
उसने इस्राएलियों के लिए प्रायश्चित किया। Very specifically, when the Lord is speaking in these two verses, he is referring to the Levites, and specifically he's saying that I have given him and his descendants a permanent right to the priesthood. So this is what the Lord was reminding in Malachi. They are permanently my priest, my priesthood. और मेरे प्यारो, अभी हमने इन वचनों में क्या देखा, इधर में हम उस शांति की वाचा को हम देखते हुए परमेश्वर इधर में कहते हैं कि मैंने तुमको उस वाचा तुमसे जो बांधी है कि उस वाचा के अनुसार तुम मेरे लिए सदा काल के लिए तुम मेरे याजक बन गए हो, याजकीय समाज तुम बन गए हो मेरे लिए। और उसी बात को मलाकी की पुस्तक में परमेश्वर दोहराते हुए हम देखते हैं। When a covenant is made, it is always a covenant between two parties, or an agreement, or a kind of understanding, a sealed understanding. It is made between two parties. और जब कभी भी हम एक वाचा के ऊपर जब हम विचार करते हैं तो ये वाचा जो है अकेले के बीच में नहीं, वरन दो लोगों के बीच में किसी भी एक कार्य के ऊपर सहमति को दर्शाता है, उनका एग्रीमेंट, उनका सहमति को दर्शाता है। When the Lord made a covenant with the Levites, both of them, the Levites and God, have come to an understanding with each other, saying that this is the covenant between us. This is what we will execute. और इस बात को हम देखते हैं कि परमेश्वर उनसे कहते हैं कि ये तो मेरे और तुम्हारे बीच में है, और इसी को हम लोग जो है करेंगे, ऐसा करने के लिए परमेश्वर दर में कहते हैं। So from God's side, what was it? From God's side, what was it towards this covenant? और परमेश्वर की ओर से इस वाचा के प्रति क्या था, क्या First है? of all, it was a divine calling to the office of priesthood. और सबसे पहली बात हम देख सकते हैं कि वो एक दैवीय बुलाहट था उस याजकीय कार्यालय के लिए। The second, it is a promise of life and a promise of peace. और दूसरा, ये एक वादा है शांति का और एक वादा है जीवन का। That is what you read in verse 5. The purpose of my covenant with the Levites was to bring life and peace. That's the purpose of the covenant. और उस वाचा का जो उद्देश्य को वचन 5 में हमने पढ़ा था, वो ये है कि ये उस वाचा का उद्देश्य है कि शांति और जीवन की वाचा। All right. So from God's side, what is his contribution towards the covenant between the Levites, the priesthood, and him? First of all, it's a divine calling. He's chosen the Levites, saying that they will permanently be my priests. और सबसे पहले बात हम इस बात को देख सकते हैं कि उन्होंने परमेश्वर ने उनको चुना है, इसलिए वो सदा काल के लिए उनका याजक पद को वो लोग संभालेंगे। The second is the promise of life and promise of peace. और दूसरा है वो एक जीवन का एक वादा और शांति का एक वादा। Now, what is this promise of life? और ये एक जीवन का वादा क्या है? The promise of life is good health, ability to carry on that ministry. So that is the promise or covenant which God is telling the priest, I am giving you a good life, I'm giving you health so that you can carry out my ministry of priesthood. और जब हम जीवन की वादा को हम लोग देखते हैं तो जीवन का वादा का मतलब क्या है? जीवन का वादा यह है कि तुम्हारा जीवन अच्छा हो और उसके साथ साथ जीवन में तुम्हारे जो शक्ति सामर्थ्य हो, जिस शक्ति सामर्थ्य के द्वारा तुम उसकी जो सेवा कार्य को जो परमेश्वर आपको सौंपते हैं, उसको आप परमेश्वर के लिए भली भांति करने पाओ। And now he's also giving the promise of peace, which means his ministry has to be carried out peacefully, with no confusion, with no mental disturbance, with nothing at all, a peaceful way in carrying out. That is the promise which God is giving his children, the promise of health, life, and the promise of peace.
और मेरे प्यारो दूसरा जो हम देखते हैं कि एक शांति का वायदा का मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि परमेश्वर की जो सेवा कार्य जो सौंपी जाती है, वो जो है शांति पूर्वक चलना चाहिए। उसमें कोई पीड़न अर्थात उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वो शांति पूर्वक उस सेवा को करनी चाहिए। The Lord is specifically calling out these two things, promise of life and promise of peace in this covenant, which is so important for us these days also. मेरे प्यारों, जो इन दो बातों को परमेश्वर विशेषता उनको बोलते हैं, जो हमारे जीवन के लिए ये जीवन का वायदा और एक शांति का वायदा हमारे लाइफ के लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और कारगर साबित होता है। Brothers and sisters, those of us who are in the ministry, who have a leadership role, who are as pastors or who are as elders or deacons, or we are evangelists, or you are teachers, you're preachers, remember this: if you don't have a good health, if you don't have a peaceful atmosphere, how can we carry out the ministry of the Lord? मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप में से जो कोई भी एक लीडर अर्थात एक अगुआ के रूप में है, एक प्राचीन के रूप में है, एक पास्टर, एक इवांजलिस्ट, एक प्रचारक, जो कोई भी हो, उनमें से यदि आपका एक अच्छा स्वास्थ्य नहीं है, तो आप सेवकाई को कैसे आगे बढ़ा पाओगे? And that is why the Lord is saying, I have given my covenant is to give you the covenant of peace, to give you the covenant of health and life. With this, you must carry out my ministry. और इसलिए परमेश्वर यहाँ पर कहते हैं कि मैंने तुमको अच्छा स्वास्थ्य दिया है, मैंने तुमको सामर्थ्य दिया है, वो इसीलिए ताकि तुम मेरी सेवा कार्य को वो भली भांति आप उसको करते जाओ। And from man's side, what is man's commitment towards God? Now, so far we saw two things as God's commitment towards man. First of all, he's called them to the office. Second, he's given them the covenant of life and the covenant of peace. Now, from man's side, what is his commitment to God in the ministry? और हम लोग अभी मनुष्य की ओर, मनुष्य के भाग में मनुष्य का क्या प्रत्युत्तर परमेश्वर की उस वादा के लिए, उस वाचा के बीच में मनुष्य का परमेश्वर के प्रति या उस वाचा के प्रति क्या कर्तव्य बनता है, उसको अभी हम देखेंगे। First of all, is the fear of God. From man's side, his commitment to God is that I will fear you always. और सबसे पहला जो कार्य आता है और जिम्मेदारी आता है मनुष्य की, कि वो परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर इस कार्य के प्रति परमेश्वर का भय मानेगा। Now, what is this fear? This fear is not a trembling fear. This fear is not a moral fear. This fear is not a fear when a student is afraid of his teacher or headmaster or principal. It is not that fear at all. और मेरे प्यारे, ये डर, ये भय का मतलब क्या है? ये साधारण भय नहीं है, जो कि एक स्कूल में एक बच्चा अपने शिक्षक से, प्रधान प्राचार्य से या प्रधान अध्यापक से डरता है, वो उस प्रकार का एक सामान्य एक भय या डर नहीं है। What does the scripture talk about fear? Now let's turn to 2 Timothy. What does Apostle Paul say in 2 Timothy chapter 1 and verse 7? और आइए मेरे प्यारो, बाइबल के आधार पर परमेश्वर के वचन में इस भय का मतलब क्या है, उसके लिए मेरे साथ में निकालिए दूसरा तीमुथियुस की पत्री 1 का 2 Timothy chapter 1 verse 3। Chapter 1 verse 7. Yeah, 1 verse 7. क्योंकि 1 का 7। परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। God has not given you and me, brothers and sisters, a spirit of fear and timidity. That is not what God has given you and me. और मेरे प्यारे, यहाँ पर क्या लिखा है कि हम परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं वरन सामर्थ्य की आत्मा दिया है। A spirit of power, a spirit of love. This is what God has given you and me. और मेरे प्यारो, उस प्रेम की और सामर्थ्य की आत्मा जो परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है। All right. And so from man's side, the first thing is man fears God, meaning he respects God. He gives all his reverence to God. That is the meaning of fear.
और वो भय का मतलब क्या है? वो भय का मतलब यही है मेरे प्यारों कि एक मनुष्य जो है परमेश्वर के प्रति अपने संपूर्ण हृदय से उसका मान सम्मान और उसका आदर महिमा और उसकी प्रशंसा करे। उसी का मतलब है परमेश्वर का भय मानना। Yeah, in verse 5 of Malachi chapter 2, verse 5, you read, this required reverence from them. Reverence is what, in other words, we call it as fear or reverence. That's the meaning there, reverence. और यहाँ पर हम मलाकी की पुस्तक उसका 2 का 5 में हम पढ़ते हैं, उधर में जो है इस वाक्य का प्रयोग किया गया है कि उसका जो है परमेश्वर का आपको मान सम्मान करना और उसका ऊंचा दर्जा देना। So man has to constantly have reverence toward God, number one. Number two, man is inspired by the significance of the name of Jesus, the power in the name of Jesus. और पहला कार्य हमने देखा कि परमेश्वर की उस आदरणीय पद को परमेश्वर को हमको देना है, और दूसरा परमेश्वर के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो व्यक्ति वो कार्य को करने के लिए प्रेरित किया जाता है। You see, in verse 5, the last portion says, and stood in awe of my name. A-W-E, awe. Stood in awe of my name. और जो है उसी मलाकी की पुस्तक उसका 2 का 5 का आखिरी पद में इस वाक्य को लिखा हुआ है कि मैं जो है बट और मैं जो है गया तेरे नाम के प्रति। All right. So we have now seen from God's side what is his contribution towards this covenant to the Levites. And we have seen from the Levites what is their covenant towards God. This is what makes both responsible towards this covenant. और अभी हमने जो है इस वाचा के प्रति परमेश्वर का कर्तव्य और परमेश्वर का प्रति उत्तर मनुष्य उस लेवियों का प्रति और लेवियों का कर्तव्य परमेश्वर के प्रति उस वाचा के बीच में अभी हमने इस बात को सीखा है। I was reading an article, and that article very beautifully mentions what a minister of the word of God has to be. और सर जो है एक आर्टिकल इस प्रकार से पढ़ रहे थे कि एक मनुष्य जो परमेश्वर की सेवा कार्य या उसके वचन की सेवा कार्य को करता है वो कैसा होना चाहिए। Two things is what that article says, that the minister of the word of God must be learned, which means he must know the scripture, and importantly, he should be godly. He must be God-fearing. That's the meaning. और 2 वाक्य उधर में प्रयोग किया गया था। पहला कि वो एक परमेश्वर के वचन को सीखने वाला हो, और दूसरा वो परमेश्वरीय एक ईश्वरीय जीवन बिताने वाला व्यक्ति हो। Without these two things, any ministry will not produce the desired result. और यदि इसके बिना जो है कोई भी सेवकाई में जो है वो रुचि को नहीं लेकर के आएगा। All right. Now, it is something like, now that article makes a comparison. It was saying that when an army officer selects a soldier, और वो आर्टिकल में इस प्रकार से लिखा था, उसका उदाहरण उसको समझे कि जब एक मिलिट्री का जो एक ऑफिसर होता है वो जब एक दूसरे व्यक्ति को जब वो सिलेक्ट उसका चुनाव करता है। Yeah, when an army officer selects a sepoy, what does he look? He looks at him, and he selects him. Whether he has one leg or two legs, he selects him. Whether if he's got just right leg, he will select him. If he's got left leg, he selects him. Is that how an army officer chooses a sepoy or a soldier? और क्या एक जो आर्मी का जो एक बड़ा ऑफिसर होता है वो ऐसे व्यक्ति का चुनाव करता है जिसको एक पाँव हो उसका भी चुनाव करेगा, और जिसके दोनों पाँव हो एक सिपाही का उसका उसी का चुनाव करेगा। क्या इस प्रकार से एक सिपाही का चुनाव करता है एक आर्मी का ऑफिसर? The army officer will look that this person whom he is selecting as a soldier must have both the legs, and both the legs are absolutely necessary to join the army, isn't it? He should be able to walk, isn't it? और इस प्रकार से इस प्रकार से नहीं कि जब एक वो ऑफिसर होता है वो एक सिपाही की तो दोनों पाँवों को होना जरूरी है, और दोनों पाँवों में इतना शक्ति सामर्थ्य होती कि वो अच्छी भली भांति
चल सके और दौड़ सके, ऐसे ही व्यक्ति को जो है एक पुलिस ऑफिसर, एक सिपाही को जो है चुनाव करता है। So, dearly beloved, the root is very, very important for the success of anyone in the priesthood, anyone who is leading or taking a lead of a ministry. It is very, very important. The root is very important. और मेरे प्यारो, एक बात और बताएं कि जो कोई भी व्यक्ति जो एक नेतृत्व के एक अगुवाई करने का नेतृत्व लेता है, या फिर एक एक प्रचार, कोई सा भी कार्य का, चाहे सेवकाई कोई प्रचार करने का हो या टीचिंग करने का हो, कोई सा भी कार्य को जो करने वाला व्यक्ति हो, उसके लिए एक सफलता पूर्वक उस कार्य को करने के लिए जड़ों का मजबूत होना बहुत ही आवश्यक है मेरे So, प्यारो। in Malachi chapter 2 and verse 5, we read that when the Lord speaks to the priesthood, he's saying that they feared and they stood in awe of my name. He mentions that. और इसलिए मेरे प्यारे, उस वाक्य को उधर में पढ़ते हुए हम देखते हैं परमेश्वर उस बात को कहते हैं कि जब उन्होंने इस कार्य को देखा तो वो मेरे नाम के प्रति बहुत ही चकित होते हुए रह गए। But in verse 2, the exact opposite is what the Lord is pointing out. Lord is pointing out and saying that they will not lay it to the heart to give glory to my name. और मेरे प्यारे, उसके बाद में वो लोग वो इस बात को परमेश्वर क्या कहते हैं कि उन लोगों ने इसके बाद में मेरे अर्थात परमेश्वर के नाम की उस महिमा को नहीं किया। All right. So the root is very, very important for a tree. इसलिए मेरे प्यारों, एक पेड़ के लिए जड़ों का होना बहुत ही आवश्यक है। So the root means the reverence. The reverence to God is of utmost importance. और मेरे प्यारों, जड़ों का मतलब यही है कि परमेश्वर के लिए मान सम्मान और उसका इज्जत और एक आदरणीय दर्जा देना परमेश्वर के लिए। The next one is the trunk. How important is the trunk in a tree? और एक 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 जो तना होता है उस पेड़ का, वृक्ष का एक तना कितना महत्वपूर्ण होता है, वो है दूसरा बात। The trunk reflects to us the strong commitment to defend and to proclaim the truth of the word of God. और जो तना है वो इसी बात को दर्शाता है कि एक बहुत ही मजबूती के साथ समर्पण उस सेवकाई को करने के लिए। All right, let's read verses 6 and 7. Malachi 2 verses 6 and 7 to understand this. मलाकी की पुस्तक और उसका 2 का 6 और 7 वाक्य को पढ़ेंगे इस बात को समझने के लिए। 2 का 6 उसको मेरी सच्ची व्यवस्था कंठस्थ थी और उसके मुंह से कुटिल बात ना निकलती थी। वह शांति और सिधाई से मेरे संग संग चलता था और बहुतों को अधर्म से लौटा ले आया था, क्योंकि याजक को चाहिए कि वह अपने होठों से ज्ञान की रक्षा और लोग उसके मुंह से व्यवस्था पूछे, क्योंकि वह सेनाओं के यहोवा का दूत है। You see, in verse 6, the Lord is mentioning the truth of instructions they received from me, the truth of instructions. और हमने अभी इस वाक्य को वचन 6 में पढ़ा था कि उन्होंने जो है सीधाई की उस व्यवस्था को रिसीव किया और उसको पाया है। And then in verse 7, the lips of the priest should guard knowledge. और दूसरा बात हमने यह देखा कि वो याजकों के जो होठ हैं वो जो है ज्ञान से सुरक्षित हों, सुसज्जित हों। All right, brothers and sisters, when the congregation, the laity or the people in the church, when they come, they listen to instruction from the leader, from the pastor, whoever it is who's leading it. They listen to instruction, and it is very important that he faithfully passes on the message of God to God's people. और मेरे प्यारों, जब कोई भी व्यक्ति जब एक कलीसिया में आते हैं तो एक प्रचारक या लीडर से जो कोई भी वचन को वो सुनते हैं, तो वो जो कार्य है उस व्यक्ति को चाहिए कि बड़े ही विश्वास योग्यता के साथ में और बड़ी ही सीधाई के साथ में उस वचन को वो प्रस्तुत करे। You see, in verse 7, the last portion says, the priest is the messenger of the Lord of heaven's armies.
और मेरे प्यारों, वचन 7 का आखिरी भाग क्या कहता है कि परमेश्वर कहते हैं कि जो याजक हैं वो परमेश्वर के दूत के समान हैं। The meaning of the name Malachi, Malak, it means messenger, angel, messenger. और जो उस जो मलाकी का नाम का अर्थ यदि हम देखें तो एक संदेशवाहक अर्थात संदेश देने वाला एक दूत, संदेशवाहक। So the duty of a messenger is not to put his own stories, but he's exactly got to say what the Lord has told him. He's got to exactly say that to the people. That is his work. और इसीलिए जो एक संदेशवाहक होता है, जो दूसरे तक संदेश पहुंचाने वाला, वो अपने खुद का एक मनगढ़ंत कहानी लोगों को नहीं देगा जिसको वहां तक पहुंचाना है, वरन जो उसके मास्टर ने जो उसको कहा है, उसी बात को, जो संदेश उसको दिया गया है, वो दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाएगा। यही एक संदेशवाहक का कार्य होता है। And this messenger is like a lawyer. He's defending his case, the truth, the word of God. He's defending that. The lawyer defends the defendant, right? और मेरे प्यारो, जिसी प्रकार से वो व्यक्ति जो है अपने आप को जो है दूसरे से और दूसरी बातों से अपने उसकी सुरक्षा करेगा वो। All right. And then not only that, he's also pronouncing the message which God has asked him to deliver. केवल इतना ही नहीं, वरन परमेश्वर के द्वारा दिया गया उस मैसेज, उस संदेश को वो जो है वो प्रचार करेगा, उन तक पहुंचाएगा। All right. If you read verse 9, I think we referred to this yesterday itself. Let's read that verse 9 once again. Malachi chapter 2 and verse 9. There you see the priest or the minister or the leader or the preacher or the teacher. He's adjusting the word according to, if there are rich people, he speaks to them differently. If there are poor people, he speaks to them differently. According to his own needs, he's proclaiming the word. और मेरे प्यारो, जो वचन हमने कल पढ़ा था मलाकी पुस्तक 2:9 में, हमने पढ़ा था इस बात को कि वो उन मनुष्यों की योग्यताओं के अनुसार वो उसी प्रकार का संदेश और प्रचार किया करते थे। You see verse 9. Let's read verse 9, Deepu. इसलिए मैंने भी तुमको सब लोगों के सामने तुच्छ और नीच कर दिया है, क्योंकि तुम मेरे मार्गों पर नहीं चलते, वरन व्यवस्था देने में मुंह देखा विचार करते हो। Brothers and sisters, if we are going to mince God's word, and according to people in the church or in a gathering, we suit and give a message which is different for different congregations, it is a gross failure in the sight of God. मेरे प्यारों, बहुत ही गंभीर बात है जो हमको सीखना है यहाँ से। मेरे प्यारों, जो परमेश्वर ने हमको जो संदेश दिया है, यदि हम उसको सही तरीके से ना उसको यदि नहीं करें, वरन उसके बाद में यदि हम दूसरों का मुंह देखा कार्य करेंगे, वो उनको जो प्रसन्न करने वाला कार्य करेंगे, तो मेरे प्यारों, ये परमेश्वर के सेवा कार्य में वो बहुत बड़ी और भयानक गलती को हम लोग कर रहे हैं। Years back, when I was in Delhi, I think in 2004 and 2006, when I was in Delhi and I was in Fellowship and Grace Assembly. और कम से कम 2000 बहुत साल पहले 2004 में जब सर दिल्ली में थे ग्रेस असेंबली के कलीसिया के साथ में। And Uncle Dawson, most of you know Uncle George Dawson. Now, when he was there, there's one word that he told me, because I used to spend a lot of time with him. There's one word he told me that I still remember, and that always rings in my ears. Your voice was cracking. Sir, please repeat, sir. All right. What I said is, when I used to interact with Uncle George Dawson in Delhi very frequently, because I used to meet him often, there's one word that he told me which is very fresh in my memory even today. और जो है उस कलीसिया में एक yes I heard. जब सर जो है ग्रेस असेंबली में दिल्ली में थे, तो उधर में एक जॉर्ज वॉटसन करके एक
अंकल थे, उनके साथ में सर अपना बहुत अधिक समय उन्हीं के साथ बिताया करते थे। और उनको वो अंकल ने जो है एक बात सर को कही थी, और यहाँ तक कि वो बात आज भी सर के मन में है उस बात को। Whenever I preach the word or teach the word or whenever I share the word, that comes to my mind always. You know what Uncle said? Uncle George Dawson said, preach the word. Preach the word. Don't dilute the word. Don't add your essence to it. Preach the word. Preach the truth. And that rings in my ears every time I prepare a message, either to teach or to preach or to share. और मेरे प्यारों, वो बात जो अंकल ने सर को बोली थी वो ये थी कि मेरे प्यारों, जब कभी भी अंकल ने उनको कहा कि जब कभी भी तुम प्रचार करो, तुम परमेश्वर के वचन का प्रचार करो, तुम किस अपनी दूसरी उस वचन में मिलावट ना करो, वरन जो सच्चा है, जो सच्चा वचन है, तुम उसी का प्रचार करो। Right. So this is what the Lord was telling them here, that they are faithful, the true instruction, the priesthood are delivering, the Levites are delivering, and he was appreciating that, the work that was being done. और इसलिए मेरे प्यारों, वो जो लेवी लोग, जो अर्थात जो याजकीय लोग जो है, वो लोग जो कार्य को कर रहे थे, वो उनको यही कार्य करने के लिए उनका प्रोत्साहन करता है, और वो लोग ऐसा कर रहे थे, इसलिए वो उनका प्रोत्साहन और All right. उनका। So yeah, so when we refer to the roots, it talks about reverence for God, and when it talks about the trunk, it talks about the faithfulness of the word that has to be passed on. और इसलिए मेरे प्यारों, जो हमने जड़ों को देखा है वो परमेश्वर के प्रति मान, सम्मान और आदर की बात है। और दूसरा, जब हम उसका पेड़ के तने के बारे में यदि विचार करें, तो वो जो है विश्वास योग्यता। क्या विश्वास योग्यता? परमेश्वर का वचन दूसरों तक सीधा और सही वचन पहुंचाने में विश्वास योग्यता, यही तना हमको दिखाता है। The next, when we talk about the branches, the branches refers to the holiness, the righteousness of the life of a preacher, pastor, teacher, or a leader. We talked about that. और मेरे प्यारों, उसके बाद में उसकी डालियां, अर्थ उस पेड़ की एक डालियां होती हैं। वो डालियां क्या होती हैं मेरे प्यारों? वो दूसरे मनुष्यों के प्रति दयालु और पवित्रता अपने जीवन में होना चाहिए, यही वो डालियां दिखाती हैं। The preachers or the teacher's personal holiness, righteousness, devotedness to God is very, very important. और एक प्रचारक या एक परमेश्वर के व्यक्ति का उसके जीवन में पवित्रता, उसके प्रायोगिक जीवन में परमेश्वर की उस पवित्रता के लिए समर्पण एक व्यक्ति के जीवन में बहुत ही आवश्यक है। The priesthood's private and public life should be life of holiness and piety. और एक याजक का उसका रहस्यमय जीवन और उसका जो सामाजिक जीवन है, वो जो जीवन जो है वो उसका पवित्र होना चाहिए उसके जीवन में। He must be one who is constantly walking with the Lord. और वो एक व्यक्ति होना चाहिए जो लगातार परमेश्वर के साथ चलता रहे। He must be one who is constantly communicating with God. और वो व्यक्ति जो है परमेश्वर से लगातार बातचीत करता रहे। It's only then that this priest who's carrying out the ministry of the Lord will be able to be righteous and holy both in his personal life and in his official life, his personal life, private life, and his official life. और यदि इन्हीं दो कार्यों को यदि वो व्यक्ति करेगा एक याजक, तो वो याजक जो है परमेश्वर की नजरों में परमेश्वर के साथ एक रहस्यमय जीवन में और उसके सामाजिक जीवन में वो परमेश्वर की उस पवित्रता को वो कायम रखने पाएगा, और वो इसी के अनुसार वो चल पाएगा और धार्मिकता उसके जीवन में रहेगी। The priest or the minister has to make sure that he's faithful in what he's doing, and he has to do everything peacefully. और इसलिए जो याजक है या कोई सेवक है, जो कुछ भी वो कार्य करता है उसमें उसको विश्वास योग्य रहना है, और वो उसी में वो बड़ी ही शांतिपूर्वक दयालु के साथ में उस कार्य को उसको करना है, एक संयम आत्मा के साथ। In no way should a priest or a minister
disturb the peace and proclaim the word. That is not biblical. You cannot disturb the और peace of an assembly. और इसलिए मेरे प्यारों, चाहे एक प्रचारक हो, चाहे एक कोई बड़े से बड़ा प्रचारक ही क्यों ना हो, शिक्षक ही क्यों ना हो, एक वो व्यक्ति किसी भी तरीके से एक कलीसिया की शांति को, परमेश्वर के वचन की शांति को किसी भी तरीके से उसको भंग ना करे। ये What बाइबल के does अनुसार Apostle Paul? नहीं है। Yeah, what does Apostle Paul advise us in Romans 12 and verse 18? और इसी बात के प्रति प्रेरित पौलुस हमको रोमियो की पत्री में 12:18 में हमको क्या बताते हैं, चलिए उसको पढ़ते हैं। रोमियो की पत्री 12:18। 12:18. 12 का 18। 18। ओके। जहां तक हो सके तुम अपने भरकस सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। You say, I'm sure all of us have read this verse again. This is a very, very important verse for a believer, for a minister, for a priest. Do all that you can to live in peace with everyone. और मेरे प्यारों, ये बात हमारे लिए, जैसे कि हमने सभी लोगों ने बड़ी ध्यानपूर्वक से पढ़ा है, ये वचन जो हमने अभी पढ़ा है हम सभी के जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। वो वचन क्या कहता है कि जहां तक हो सके, जितना हो सके, सबके साथ मेल मिलाप से रहो। Brothers and sisters, our prayer should be that the Lord should allow the Holy Spirit to give us wisdom to live peaceably with all men. मेरे प्यारों, हमारे जीवन में परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमको सारे लोगों के साथ में मेल मिलाप के साथ शांति पूर्वकता के साथ जीवन बिताने में हमको मदद करे। If the Holy Spirit doesn't intervene, by our own self, we will always be finding some fault or the other with every person. और मेरे प्यारों, यदि हम पवित्र आत्मा की ओर से इस सामर्थ्य को नहीं पाएंगे, तो मेरे प्यारों, हम हमेशा अपने ही इच्छा के अनुसार, अपनी समझ के अनुसार दूसरे लोगों के जीवन में कहीं ना कहीं गलतियों को हम लोग पाएंगे। Not only finding fault outside, but finding fault inside the church itself with one brother and one sister. If we cannot live peacefully within our congregation, how are we going to live peacefully outside? So the Holy Spirit must intervene, and it should be our prayer that God should help us live peacefully with all men. That's what the Word of God instructs us. और मेरे प्यारों, यहाँ पर यही बात तो हमको सिखाता है कि जब हम एक व्यक्ति के जीवन में, यदि हमारे जीवन में पवित्र आत्मा कार्य नहीं करते हैं, तो हम जो है एक व्यक्ति के जीवन में उन कमियों को ना केवल बाहरी और सामाजिक जीवन में, वरन कलीसिया के अंदर भी किसी भाई बहन की उस कमजोरी को हम लोग ढूंढ करके उसी बात पर हम लोग बात करेंगे, और वो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा नहीं, वरन वो हम अपने ही समझ के अनुसार उस कार्य को करते हैं, और ये कार्य पवित्र आत्मा का नहीं हो सकता। Out of the mouth of the priesthood or the mouth of the ministers, they cannot talk foul language. They cannot say something which is untrue. They cannot spread rumors. That can never come in the mouth of a priest, in the mouth of a minister or a leader. और मेरे प्यारों, एक प्रचारक, एक याजक, एक सेवक के मुंह में, कलीसिया के अंदर या कहीं पर भी, उसके जीवन में, उसके मुंह से कभी भी वो गलत वाणी, वो गलत भाषा कभी ना आएगी। A priest or a minister should be pure in whatever he says. He must be filled with grace, and he must have the truth, the word of God, always with him. Whether it hurts him to do it or not, he must have all these things with him always. That is what the Lord is advising here. और मेरे प्यारों, एक जो याजक है, एक जो सेवक है, एक जो अगुवा है, एक प्रचारक है, उसके जीवन में हमेशा जो कुछ भी वो बोलते हैं उसमें शुद्धता और सत्यता होना अनिवार्य और अति आवश्यक है। And so, when we look at the picture of the tree, we have considered so far a priest is like a root. He must have godly reverence.
और अभी जैसे कि हम इस पेड़ को देखें तो अभी तक हमने इस बात को सीखा कि एक याजक जो उसकी जड़ें जो है उसकी जड़ें अर्थात परमेश्वर के प्रति उसका आदर और मान सम्मान देना परमेश्वर को। A successful priest or a successful minister's root will be godly reverence. Number two will be faithfulness, which is the trunk that we have seen. And number three, which is the branches, which is his personal righteousness and holiness. और हमने एक 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 सफलता पूर्वक एक याजकीय सेवा के लिए एक याजक का जीवन में सबसे पहले जड़ें पेड़ की जड़ों से हम सीखते हैं कि वो परमेश्वर के प्रति वो आदरणीय परमेश्वर का आदर मान सम्मान करने वाला। दूसरा जो हमने देखा था उसका एक वृक्ष का तना अर्थात वो परमेश्वर के वचन की विश्वास योग्यता के साथ। और तीसरा हमने डालियां ब्रांचेस को देखा है वो उसके व्यक्तिगत जीवन में और सामाजिक जीवन में धार्मिकता और पवित्रता को होना चाहिए। And brothers and sisters, when we find all these things, when you find reverence as the root, when you find faithfulness as the trunk, when you find piety or righteousness and holiness as the branch, you know what the fruit is going to be? The fruit is going to be that there will be many who will be touched by your ministry. और मेरे प्यारों जब एक याजकीय एक सफलतापूर्वक याजकीय सेवा कार्य के जीवन में एक सेवकाई के जीवन में जिसकी जड़ें जो है परमेश्वर को मान आदर सम्मान करना, दूसरा उसका तना जो कि विश्वास योग्यता परमेश्वर के वचन को सुनाने के लिए, तीसरा डालियां अर्थात उसके जीवन में जो धार्मिकता और पवित्रता, इन सभी का एक जड़ें एक तना और एक एक डालियां यदि उनके जीवन में होंगी तो मेरे प्यारों उसका फल क्या होंगे मेरे प्यारों? जो हमने अभी देखा है कि उसकी व्यक्ति के जीवन के द्वारा बहुत बहुत सारे लोगों का जीवन को छुएगा परमेश्वर और वो उधर में उनका उद्धार होगा मेरे प्यारों। All right. Now in verse 6, we read this earlier. Let's read that verse once again. Verse 6, you'll find that he turned many from iniquity. You'll find that in Malachi 2 and verse 6, you'll find that phrase which says he turned many from iniquity. और मेरे प्यारों अभी हमने जो है मलाकी की पुस्तक उसका 2:6 में इस बात को पढ़ा था कि उसने बहुतों को वो उन पापों से फेर लाए। Many times we wonder that I'm deeply involved in the ministry. I'm doing a lot of things for the Lord, but I'm not seeing results. I'm not able to see the results of my ministry. Brothers and sisters, we need to do a check of our life on all these. What is our root? What is our trunk? What is our branches? And then see what are the results. Then the Holy Spirit will reveal to us where we have gone wrong, what needs to be corrected, and how we need to faithfully follow the Master in the ministry. और मेरे प्यारों भाइयों बहनों हम आप में से बहुत सारे लोग हम में से बहुत सारे लोग बहुत ही प्रकार की सेवकाइयों में भाग लेते हैं, बहुत सारे प्रकार की सेवकाइयों को करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं, कड़ी मेहनत के बावजूद भी हमको कोई प्रतिफल नहीं मिलता है मेरे प्यारों। तो हमको क्या करना है? हमको अपना ही खुद का हमको अवलोकन करना, अपनी जांच करना है मेरे प्यारों। हमारी जड़ें क्या हैं? हमारा तना क्या है? हमारी डालियां क्या हैं? और यदि हमारी डालियां यदि हमें तना यदि हमारी जड़ें सही नहीं है तो मेरे प्यारों हमको वो फल नहीं प्राप्त होगा। इसलिए हमको अपने आप को जांचना है। Brothers and sisters, whatever we are involved in, be it a gospel ministry or be it an ordinary ministry or a ministry among the young people or the small children, when we are involved in God's ministry, we are God's priesthood. Every word we say, every verse we say, everything that we say will have to touch other people's life. It can be a blessing, it can be an encouragement, or it can be a conviction, or it can turn many people from sin into righteousness. There must be a result whenever any priest of God is involved in a priesthood activity. और मेरे प्यारों मेरे प्रिय भाई बहनों आप में से कोई भी व्यक्ति चाहे प्रचारक की एक सेवकाई में हो, चाहे एक सुसमाचार सेवकाई में हो, चाहे बच्चों के बीच में सेवकाई में क्यों ना हो मेरे प्यारों, उस व्यक्ति के जीवन में जो है
परमेश्वर के प्रति जड़ें, तना और ब्रांच क्या है, वो यदि उनको मायने रखते हुए यदि वो व्यक्ति उस सेवकाई को करेगा, वो वचन उन तक पहुंचाए बड़ी विश्वास योग्यता के साथ में, परमेश्वर का सीधा वचन उस तक पहुंचाएगा, तो मेरे प्यारो उसका जीवन में जब धार्मिकता पवित्रता होगी तो उसका प्रतिफल उसको मिलेगा। बहुत सारे लोगों को जो उनकी अधार्मिकता से, उनके पापों से उनको फेर करके लाएगा और वो बड़ा प्रतिफल देखने पाएगा अपने जीवन में। From my personal experience and for the glory of God, I want to say this: when we minister the word or when we share the word, be it big or small, your ministry or my ministry can touch other people's life. It can encourage another person. And I have seen it happen personally. And I've also seen ministries happening where you're sitting there and listening to a message, it totally discourages you. It totally destroys your peace. When some people get up and they start and they share the word, we must be very, very careful because we are ministers of God. We are the priesthood of God. And when we look at the tree and look at all the functions of the tree, when we make sure all those things are in our life, the only result, brothers and sisters, will be positivity. It'll be encouragement. It'll be salvation. It'll be bringing many people closer to the Lord. We have to be a blessing to God's children wherever we are. मेरे प्यारो, हम जहां कहीं भी हो मेरे प्यारो, जब हमारे जीवन में जो उसके प्रति जो है परमेश्वर के प्रति उसका जो है जड़, उसका तना, उसका ब्रांच, जब हमारे जीवन में ये परमेश्वर के प्रति समर्पित होगा मेरे प्यारो, और जब हम उसको सीधाई से परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुंचाएंगे, जब हमारे जीवन में धार्मिकता पवित्रता आएगी, जब हमारे जीवन में विश्वास योग्यता परमेश्वर के वचन के प्रति आएगी, तो मेरे प्यारो जब हम दूसरे लोगों तक सीधाई के साथ में उस वचन को पहुंचाएंगे, मैं इस बात को व्यक्तिगत तरीके से बताना चाहता हूं कि वो सेवकाई को जो है, जो वचन आप बोलेंगे, वो दूसरे लोगों के हृदय को छू जाएगा। चाहे आप छोटा कर रहे हैं उस कार्य को, लेकिन वो दूसरे के लिए बहुत ही लाभकारी होना चाहिए। बहुत सारे लोग आज जो बैठ करके सुन रहे हैं, उनके हृदयों को आज परमेश्वर का वचन छू रहा है। वो आपकी शांति को भंग कर रहा है, जो आप उसमें पहले लीन थे, आज आप जागरूक हो रहे हैं मेरे प्यारो। और उस इसी प्रकार से जब आप इसको एक नकारात्मक तरीके से नहीं, वरन सकारात्मक तरीके से जब आप इसको लोगे, तो ये आपके लिए वो उन फलों के समान होगा। वो हमेशा एक उत्साह, एक उद्धार, एक उत्साह का कारण आपके लिए बनेगा। So what do I understand, brothers and sisters? From the tree illustration, what do I understand? और मेरे प्रिय भाइयों बहनों, एक पेड़ के उदाहरण से क्या मैं क्या समझता हूँ? Listen to me very carefully. इस बात को ध्यान पूर्वकता से सुनना मेरे प्यारो, बड़े ध्यान से When सुनिएगा। when my ministry is rooted in the glory of God, जब मेरी सेवकाई परमेश्वर की महिमा में जड़ पकड़ी हो, and my trunk is strong with the word of God, और मेरा तना परमेश्वर के वचन के मजबूत हो, and my branches display the righteousness of God, और मेरी जो डालियां हैं वो परमेश्वर की धार्मिकता और पवित्रता को दिखाए, the ultimate result is the fruits. The fruits will always bring about salvation. It will always bring about many people to repentance. It will always encourage the other person who's being ministered by me. और उसके बाद में सीधा फाइनली सीधा उसका रिजल्ट, उसका परिणाम यही होगा कि उसका प्रतिफल वो फलों में बदल जाएगा। फल हमको दिखने लगेंगे और वो सीधा कई लोगों के लिए उद्धार का कारण होगा, कई लोगों को पाप से फिरने का कारण बनेगा, कई लोगों को अंधकार और अधार्मिकता से वो धार्मिकता में परमेश्वर के प्रति एक फलवंत जीवन जीने के लिए उनको फेर करके लाएगा। Brothers and sisters, I hope you understood the truth as far as the basis of using the illustration of the tree here. और मेरे प्यारों में ऐसा आशा करता हूं कि इस सच्चाई के आधार पर इस पेड़ के उदाहरण से आप उसको समझ पाए होंगे। All right. Now, when we share the word,
when we talk about the word to others, sometimes we use the word, I think this is what it means. We, we, we generally use that word when we speak and try to explain certain things. और कई बार हम ऐसा सोचते हैं मेरे प्यारों कि जब हम उस सेवकाई को करते हैं तो कई बार हम उस सेवकाई के दौरान जब दूसरे भाई को हम उस समाचार को सुनाते कई बार हम इस शब्द को प्रयोग करते कि मैं ऐसा सोचता हूँ, मैं ऐसा सोचता हूँ उसके बारे में। All right. We must be very careful when we say that it is what I think or this is my opinion. We must be very, very careful in avoiding this usage because we are not communicating the truth or the word of God in its entirety. If I say the word, I think, my opinion is, this is what I understand. When we say that, we are not communicating the wholesome truth of the word of God to the hearers. और मेरे प्यारों जब हम एक व्यक्ति को जब हम परमेश्वर का वचन जब उस तक पहुंचाते हैं, जब हम उसके साथ में परमेश्वर के वचन को साझा करते हैं और उसी दौरान जब हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं कि मैं ऐसा सोचता हूं, मैं ऐसा सोचता हूं, मैं ऐसा विचार करता हूं इस बात के प्रति, तो मेरे प्यारों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जब आप ऐसा करते हैं तो आप जो परमेश्वर का सही और सीधा वचन उस तक नहीं पहुंचा रहे हैं मेरे प्यारों। Yeah, when we do that, you know what will happen when we say, I think, or this is my opinion, this is how I understood it. When we do that, you know what the result is? People will just hear you and they will just walk away. It will not create an impact. They will not give much importance to what we are saying. और यदि मेरे प्रिय भाई बहनों जब हम इस प्रकार से करते हैं तो क्या होगा, जो सुनने वाला जो व्यक्ति होगा वो व्यक्ति क्या होगा, आपके उस वचन जो आप कह रहे हैं उसके लिए ज्यादा महत्व नहीं देगा, जस्ट वो उसको सुनेगा और चला जाएगा और उसके Instead जीवन of में that, कोई बदलाव को yeah, लेकर के नहीं आएगा। instead of that, we can say, this is what God says in the word. This is what the Bible says. When you say that, it is an affirmation that you're speaking with authority on the basis of the word of God and what God has given you. और इसके बदले मेरे प्यारों हमको कैसे कहना चाहिए कि हमको परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, परमेश्वर इस वचन के द्वारा ऐसा ऐसा कहते हैं, और जब हम इस प्रकार से बातों को उसको बोलते हैं तो वो जो है परमेश्वर के वचन के आधार पर हम बोल रहे हैं, ऐसी सत्यता को प्रकट करता है। And when we say that it is the basis of the word of God, this is what the Bible says, this is what the word says, this is what God says. When we say that, and if anyone wants to argue, let us not get into any argument. We have preached the word, we have given the word. It is for God to make them understand it. It is not my duty or your duty to make them understand it. और मेरे प्यारों जब हम इस बात को दूसरे के साथ शेयर करते हैं, जब हम सीधा परमेश्वर के वचन से कहते हैं कि परमेश्वर का वचन यहाँ पर ऐसे प्रकार से लिखा है, परमेश्वर ये कहते हैं, तो कोई भी व्यक्ति जो है यदि आकर के हमसे वाद विवाद करेगा, आर्ग्यूमेंट करेगा, तो हमको उससे कोई परवाह नहीं करना, वरन हमको परमेश्वर का सीधा और सच्चा वचन उस व्यक्ति तक पहुंचाना है। All right. And in the last portion, the fruit that we saw, when the result of the tree, which is the root, the trunk, and the branches, the result of everything which is grounded and founded on all the elements that we saw now, the fruit ultimately has to be a blessing. It has to bring many to the saving grace of the Lord Jesus Christ. There is no alternative to that. और मेरे प्यारों उसके बीच में जो परमेश्वर का जो अभी हमने उस पेड़ के द्वारा हमने देखा था कि उसके द्वारा उसका सीधा जड़ें और तना और डालियों के बाद में हमने सीधा देखा कि उसका सीधा अंत उसका और प्रतिफल क्या होगा, वो व्यक्ति के जीवन में वो पवित्रता, वो व्यक्ति के जीवन में वो उद्धार को लेकर के आएगा, उसके लिए और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। All right, I'm going to close with this slide. This is the last slide for today. If you see, the warning which the Lord was giving to the Old Testament priests or the priesthood that we saw yesterday and today, you find it in Malachi chapter 2, verses 1 to 9. That is what we have been considering so far. और हमने आज तक हम कल और आज हमने इसी बात को देखा था कि मलाकी की पुस्तक उसका 2 का 1 से लेकर के 9 तक वो पुराने नियम के याजकों के लिए चेतावनी या परमेश्वर देते हैं, उसको हमने कल और आज अभी तक हमने देखा है।
brothers and sisters, for me and for you as New Testament priests, what is the Lord saying? Let's quickly read those verses and we will close. और मेरे प्यारों, हम एक नए नियम के याजक होने के नाते हमारे लिए और हम मेरे लिए परमेश्वर हमसे क्या बात करते हैं, चलिए हम जल्दी से उसको पढ़ेंगे और समाप्त करेंगे। पहला पत्रस उसका 1 अध्याय What? 13 से 17 तक। पहला पत्रस 1 अध्याय Yes, 13 let's से read. लेकर के Yeah. 17 तक इन वाक्यों को पढ़ करके हम Let's समाप्त read. Let's read those verses. There you find the warning which God is giving to New Testament priests, which is me and all of us. So let's read that and close. 13 to 17. कोई भी भाई जल्दी से पढ़ने में मदद करें। पहला पत्रस 1 अध्याय 13 से लेकर के 17 तक। इस ओके। कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। और जब कि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, तो बिना पश्चाताप हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है। तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ। All right, if you finished reading these, this is the instruction or the warning that is given to me and to all of us. और मेरे प्यारों, यदि आपने इसको पढ़कर समाप्त किया तो हम इसी बात से यही समझ सकते हैं मेरे प्यारों कि यही चेतावनी, जैसे कि हम ये जो चेतावनी हमको दी गई है उसको अभी हमने पढ़ा है। May God be honored and glorified. The Lord spoke to me when I prepared this message to present it to you, and I hope the Lord continues to speak to all of us, and may His name be honored and glorified. And I hope this message to the priesthood which God spoke and God is speaking to us, may it help us to be used more powerfully in the days to come. और मैं इस बात को इस बात के द्वारा मैं आज के वचन के द्वारा मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि मैं ऐसी आशा करता हूं कि परमेश्वर आप सभी से जो है आज बातचीत किया इस वचन के द्वारा। जब मैं इस मैसेज को संदेश को तैयार कर रहे थे तो मेरे पर्सनल व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर ने मुझसे बात किया है। जो याजकीय, जो नए नियम के याजकीय सेवकाई के लिए जो हमको बताई गई बातें हैं वो हमारे जीवन में लाभकारी हो, मैं ऐसी कामना करता हूं और मैं से परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। And Deepu, thank you very much because I used